Hi students, welcome you all in OSA coaching classes. Students, today we will start next chapter 2 which is polynomials. In this video we recall some definitions and concept. Also we will study new concepts too. Okay, so first we recall definition of a polynomial. Students, a polynomial in one variable x is an algebraic expression of the form p of x is equal to an into x raised to n plus an minus 1 into x raised to n minus 1 plus up to so on plus a2 into x raised to 2 plus a1 into x raised to 1 plus a0, where a0, a1, a2 and an are constant and an is not equal to 0. Okay, for example, x square plus 4x plus 4. This is an example of a polynomial. Now we will see one more definition of a polynomial. So, an algebraic expression that involves operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of a variable. ठीक है, non-negative integer exponent of a variable. इस चीज़ से मतलब ये कि पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हमेशा आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा. ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे बेसिक मीनिंग की पॉलिनोमियल की, तो पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म. सो सिंपली पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म्स. ठीक है, अब इन डिटेल में टर्म्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली उनका मीनिंग क्या है. ओके, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें पॉलिनोमियल कहना है और किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते. तो चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x कैन नॉट बी इनसाइड अ रेडिकल. ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मिले तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि x कैन नॉट बी इनसाइड अ रेडिकल. नाउ नेक्स्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x रेज टू माइनस 2. दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज नो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अलाउड. जस्ट हमने डेफिनेशन में देखा कि वेरिएबल का पावर हमें नॉन नेगेटिव चाहिए. ठीक है, सो यहाँ अगर हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में, इस टर्म में वेरिएबल की पावर नेगेटिव है. सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट p ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x. दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर 2. Also, p of x is equal to 4 raised to x plus 3. This is also not a polynomial because x cannot be an exponent. Got it? Now next, p of x is equal to 5 into x raised to 1 by 3 plus 3 into x raised to 2. This is also not a polynomial. Tell me why? Because x cannot be a fraction. हमने डेफिनेशन में ये चीज़ देखी जस्ट कि x का किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर है वो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए. क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर. वहाँ हमें ना तो कोई फ्रैक्शन चाहिए ना तो कोई नेगेटिव इंटीजर चाहिए. ठीक है, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ algebraic expression which are not a polynomial. Okay, now next we will see what is mean by algebraic expression. Now an algebraic expression is a combination of integer constants, variables, exponents and algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. For example, x plus y, x minus y, 4x and 1 upon x plus 1. These are examples of algebraic expression. There are lots of examples of algebraic expression. Okay, now one question arises here that are algebraic expressions polynomials? So students, no, not all algebraic expressions are polynomials.
The difference is polynomials include only variables, constant and coefficients with mathematical operation, addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents. But algebraic expression include constant, variables, coefficients and mathematical operations, addition, multiplication, subtraction and division and rational exponent of variable. Okay. अगर हम पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही वेरिएबल का पावर जो है वो है नॉन नेगेटिव. ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल्स में, तो उस वेरिएबल में जो एक्सपोनेंट होता है या पावर होता है वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर. कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. बट अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर या वेरिएबल में एक्सपोनेंट जो होगा वो रैशनल भी हो सकता है, यानी कि रैशनल यानी कि फ्रैक्शन में भी पावर हो सकती है वेरिएबल की. ठीक है, या फिर नेगेटिव पावर भी हो सकती है. और साथ ही जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी टर्म्स, कोएफिशिएंट्स एंड फैक्टर. अब हम देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है, इन 3 कॉन्सेप्ट्स क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट इज टर्म्स. सो इट इज़ अ कांस्टेंट, अ वेरिएबल और वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट. ठीक है, किसी पॉलिनोमियल में टर्म्स यानी क्या कि वो कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है या कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है. अब वेरिएबल यानी कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट कंसिडर कर सकते हो फ्रॉम A to Z. ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आप X और Y चूज़ करें. जनरली हम देखते हैं बुक्स में कि मैक्सिमम टाइम हम X, Y, A, B इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन वेरिएबल्स में आप A to Z किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कोएफिशिएंट. सो व्हेन अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल द कांस्टेंट इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट. ठीक है, अब आप देखोगे कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, सपोज 3x² + 1. सो x² को हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो 3 है उसे हम कोएफिशिएंट कहेंगे. Next, factor of a term. The numbers or variables that are multiplied to form a term are called its factors. ठीक है, these are definition of terms, coefficient and factor. Let's see one example to understand more clearly. So, here one polynomial is given which is 3x² + 5x - 20. Okay, so clearly यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल यानी कि क्या है. सो दिस x इज वेरिएबल हेयर, 20 - 20 इज कांस्टेंट. ठीक है, -20 इज कांस्टेंट. 3x² इन दिस टर्म, दिस 3 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट बिकॉज 3 इज इन मल्टीप्लिकेशन विथ x². ठीक है, सो इस 3 को कहना है कोएफिशिएंट. और इस पॉलिनोमियल में 3x², 5x एंड 20 और -20 दीज आर टर्म्स. ओके, इन तीनों को कहना है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, एंड व्हाट इज मीन बाय फैक्टर? सो फर्स्ट इन दिस पॉलिनोमियल फर्स्ट टर्म इज 3x². करेक्ट, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3x². और फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो फैक्टर्स है 3x और x. ठीक है, 3x² इस टर्म्स के फैक्टर है 3x और x. सेकेंड टर्म है 5x. सो 5x के फैक्टर्स है 5 एंड x. गॉट? सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये 5 कंसेप्ट्स यानी कि टर्म्स, कोएफिशिएंट, वेरिएबल,
कांस्टेंट एंड फैक्टर्स। ये 5 कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। So if p of x is a polynomial in x, the highest power of x in p of x is called the degree of the polynomial p of x. Okay, for example here, first polynomial is 4x cube minus 2x plus 5. It has degree 3. And in example number 2, second polynomial x square plus x raised to 6 minus 3. This polynomial has degree 6. Okay, student, see here, by definition of polynomial, degree of a polynomial, what we want? The highest power of x in p of x. Okay, that means अगर आप यहाँ देखोगे इस polynomial में यहाँ x की पावर है 2 और यहाँ x की पावर है 6, करेक्ट। बट बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो हमें हाईएस्ट पावर चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चाहिए, एंड दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6. ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो यहाँ 2 कैटेगरी में हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ terms. Okay, so first example is 2x minus 5. In this, highest power of variable x is 1, and this type of polynomial is called as a linear polynomial. Second is 3x square plus 3x minus 4. This type of a polynomial is called as a quadratic polynomial. Okay, because in this highest power of variable is 2. ठीक है. थर्ड वन इज एक्स क्यूब माइनस 4. इन दिस हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज 3, एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, या ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल वेरिएबल के हाइएस्ट पावर 3 हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहना है. सिमिलरली अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होंगी तो उसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मोनोमियल. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट है मोनोमियल. सो मोनोमियल मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन टर्म. ओके, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो. सेकेंड वन इज बाइनोमियल. बाइनोमियल किसे कहना है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल हो लेकिन साथ ही उसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हो, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को आपको कहना है बाइनोमियल. सिमिलरली ट्राइनोमियल, एंड अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कि जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो, तो उस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको बोलना है पॉलिनोमियल. ठीक है. सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ polynomial according to the degree and according to the number of terms. Now next is zero of a polynomial. So a real number k is said to be zero of a polynomial p of x if p of k is equal to 0. 0 यानी कि हम जिसे रूट भी कह सकते हैं, रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, फॉर एग्जाम्पल p of x is equal to 2x minus 4. Okay, so for x is equal to 2, value of p of x is equal to 0, and this x is equal to 2 is called the zero of a polynomial. और सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का 0 या इस पॉलिनोमियल का रूट 2 है. ठीक है. Now note that if p of x is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called the value of p of x at x is equal to k, and it is denoted by p of k. So for example,
p of x is equal to 2x square minus 3. This is an example of polynomial. Therefore, for x is equal to 1, value of this polynomial is minus 1. ओके अगर स्टूडेंट हम किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं किसी रियल नंबर से, तो आने वाला कांस्टेंट या आने वाले नंबर जो भी यहाँ पे होगा, उस नंबर को, उस कांस्टेंट को हमें कहना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस वीडियो में लिए गए क्लास 9 से और क्लास 10th में जो यूज़फुल कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो. ओके. सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to our channel for more upcoming videos. Okay then, bye bye.